السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل آپ کی زبانی اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ اس ہفتے پھر حاضر خدمت ہیں آپ کے مسائل پر بات کرنے کے لیے، وہ مسائل جن پر ہم روزانہ بات کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگی روز متاثر ہوتی ہے، لیکن یہ شاید ارباب اختیار کے لیے اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ان پر توجہ نہیں دیتے، لیکن ہم یہاں آپ کے مسائل پر بات کرتے رہیں گے تاکہ حکمرانوں کو ہم مسلسل یہ یاد دلاتے رہیں کہ یہ مسائل ابھی حل نہیں ہوئے اور ان کو حل کرنا ان کا فرض ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پانی کی قلت، مہنگائی اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر اور بنیادی سہولیات نہ ہونے پر، تاکہ حقیقی صورتحال آپ کے سامنے آ سکے اور ممکنہ حل تلاش کیے جائیں۔ تو چلیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ملتان کی اہم شاہراہ پیرا غائب روڈ گزشتہ 5 برس سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑکی خستہ حالی نے ٹریفک، کاروبار اور شہری زندگی کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ اس بارے سے مزید جانتے ہیں عبدالرحیم شاہد کی رپورٹ میں۔ شہر کی معروف شاہراہ جس پر کاروباری مراکز، سرکاری نجی تعلیمی ادارے، ہسپتال، سری نارائن گیس کے ریجنل دفاتر، OGDCL کے دفاتر اور پیرا غائب پاور ہاؤس شامل ہیں، مگر عوامی نمائندوں کی عدم دلچسپی سے یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہ اپیل ہے کہ یہ دیکھیں، یہ روڈ اتنا گندا ہوا پڑا ہے، ہمیں پریشانی ہے، دقت ہوتی ہے، روزانہ صفائی کر کے کلینک کی آنے جانے میں مشکلات ہوتے ہیں، یہ پہاڑ لگے ہوئے ہیں۔ روڈ تباہ و برباد اور حادثات معمول بن چکے ہیں۔ بھائی جان، یہ روڈ ہے نا 3-4 سال سے یہ پورا تباہ ہوا پڑا ہے اور یہ گاڑیاں ہماری تباہ ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ یہ اس وجہ سے ہمارے ایکسیڈنٹ روزانہ ہوتے ہیں یہاں پہ اس روڈ کے اوپر، پیرا غائب روڈ کے اوپر۔ 2 ماہ کام 6 ماہ بند ہونے سے مشکلات اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ 4-5 سال ہو گئے ہیں یہاں پر لائن ڈالنے کا کام شروع کیا تھا گورنمنٹ نے۔ اس سال میں کوئی 2 مہینے کام ہوتا ہے، 6 مہینے کام بند ہو جاتا ہے، تو انتہائی مشکلات ہے۔ مٹی کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، کسی کو دمے کا مسئلہ بن رہا ہے۔ کام سست روی کا شکار، بالآخر حکومت چاہتی کیا ہے؟ اور کئی بندے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، بیچارے گر جاتے ہیں، رستہ نہیں ہے، مسجد کا رستہ نہیں ہے، پتہ نہیں حکومت کیا کر رہی ہے ہمیں تو۔ مریم نواز کا صاف ستھرا پنجاب ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ سارا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ڈیلی یہاں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بندے مر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا صاف ستھرا پنجاب، ہمیں تو کہیں صاف ستھرا پنجاب نظر ہی نہیں آیا، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کمشنر ملتان کی شہر کی ترقیاتی کوششوں کے باوجود اس اہم شاہراہ کی تباہ حالی اور روزمرہ حادثات انتظامی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جس نے شہریوں کی زندگی مفلوج کر دی ہے۔ چودھری عبدالرحیم شاہد، M نیوز ملتان۔ بات کریں گوجرانوالہ میٹرو بس منصوبے میں مسلسل تاخیر سے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ ٹریفک جیم اور متبادل راستوں کی کمی نے روزمرہ زندگی متاثر کر دی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کاشف راجپوت اپنی اس رپورٹ میں۔ میٹرو بس منصوبہ گوجرانوالہ کے لیے یوں تو ایک بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے، مگر یہ منصوبہ جو ہے بار بار تاخیر ہونے اور کام میں رکاوٹ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے ملا جلا رد عمل آ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میٹرو بس منصوبہ جو ہے اس کو مکمل ٹائملی کیا جانا چاہیے تھا، اور جو متبادل راستے دیے گئے ہیں وہاں پہ کام جو ہے اس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا کہ حادثہ نہ ہوتے۔ پنجاب حکومت نے گوجرانوالہ میں بنائی تو ایک سہولت ہی، لیکن یہ جو سہولت ہے یہ دن بدن اتنی کو زحمت کا سبب بن گئی ہے گوجرانوالہ کی عوام کے لیے کہ دنیا پریشان ہے۔ پورا گوجرانوالہ مفلوج ہو چکا ہے، ٹریفک کا نظام درم برم ہو چکا ہے، اور صرف مس جو ہے مینجمنٹ کی وجہ سے اگر اتنا بڑا منصوبہ بنانا تھا تو اس کا متبادل بھی ہونا چاہیے تھا۔ پبلک ذلیل ہو گئی ہے، لوگ 2-3 گھنٹے میں جو ہے اپنے گھروں تک پہنچتے ہیں اور سارے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ خدا را اس کو ابھی بھی اس کا کوئی سدے باب کریں اور مینجمنٹ میں کوئی تبدیلی کریں اور اس کا کوئی بہتر حل دیں۔ بھوکے مرنے پے جڑی گل ہے، سارا کچھ شہر توڑ پا دیتا، اسی ریڑھی والے ہیں، کتنے ریڑھی لائی جیڑی روڈ سے۔ بہت عوام ذلیل ہو رہی ہے، راستے سارے ٹوٹے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم رائڈر ہیں، کہاں پنجی بائی پاس سے آنا ہوتا ہے، راستے ٹوٹے ہیں، کبھی ایسے جانا کبھی ویسے جانا، بہت ذلیل ہو رہے ہیں۔
یہ میٹرو منصوبہ کئی حادثات کا سبب بن چکا ہے، جہاں پہ کئی گاڑیوں کے نقصانات ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہو چکا ہے، اور رہی صحیح کسر جو ہے مونسون کی بارشوں نے نکال دی۔ بارشوں میں میٹرو بس منصوبے کے جو متبادل راستے ہیں وہ جو ہے کھڈوں کا منظر پیش کرتے ہیں، جہاں پہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور گاڑیاں جو ہیں اکثر اوقات ان میں پھنس جاتی ہیں، گر جاتی ہیں اور وہ حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ نہیں ہو رہا، بالکل ناکام ہے، مزدوروں کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، یہ پریشانی بنی ہے، مزدور کھانے سے بھی تنگ ہے، اسے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، تو کام چلتا ہو تو پھر کچھ کریں۔ کاروبار ہے کون نہیں، نظام سارا خراب ہوا ہے، پانی شانی کھلوتا سارا، کاروبار کا کوئی نظام نہیں ہے، جلیل ہوتی ہے عوام۔ 3-4 راستے ابھی بھی یہ شہر کو دے سکتے ہیں، اس میں یہ جو کمپنی ہے ان کا بھی فائدہ ہے، عوام کا بھی فائدہ ہے، لیکن انہوں نے دیا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا پرابلم ہے بارشوں کی وجہ سے۔ ویسے بھی گاڑیاں الٹی ہو رہی ہیں، کوئی ادھر گر رہا ہے، ابھی جو گاڑی آ رہی ہے اسلام آباد سے اس کو تو نہیں پتہ یہاں کھڈا ہے، تو ابھی رات کو 4-5 گاڑیاں گری ہیں، وہ کرینوں سے نکالتے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ تو شہر کے لیے ایک بڑا منصوبہ ہے، 100 ارب روپے سے مکمل کیا جا رہا ہے، بٹ جو کانٹریکٹر کمپنیز ہیں ان کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ اتنے خاصے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ مونسون کا مہینہ بھی ہے، اس کی وجہ سے بارشیں ہیں، اور جو متبادل راستے دیے گئے ہیں جو ٹریفک گزارنے کے لیے مین جی ٹی روڈ کے اوپر وہ اتنے اچھے نہیں بنائے گئے، ان کے اوپر جو کارپیٹنگ اس طرح سے نہیں کی گئی، مٹی کے روڈ بنائے گئے ہیں، اس کے اوپر بارش پڑتی ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے، وہ کھڈے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک شہری بھی بتا رہے تھے کہ کافی سارے حادثے پچھلی رات کو ہیں جب بارش ہوئی ہے گوجرانوالہ میں، تو یہ منصوبے پہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کی سپیڈ تھوڑی بہتر کی جائے، اور جو بار بار کام رک رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے، اور شہریوں کے لیے متبادل گزرنے کے جو ہے راستے فراہم کیے جائیں، کیونکہ یہ منصوبہ جو ہے وہ شہریوں کے لیے سہولت کی بجائے اب جو ہے آفت بنتا جا رہا ہے۔ کافی سارے اس میں حادثات ہو چکے ہیں، کافی انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہوا ہے، اور گوجرانوالہ کی شہریوں کی یہی حکومت سے اپیل ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور شہریوں کے لیے آسانی کی جائے۔ کیمرہ مین وہاب خان کے ساتھ کاشف راجپوت، گوجرانوالہ۔ ٹنڈوالہ یار کی مین حیدرآباد روڈ چند سال میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ شہری ناقص تعمیر کا الزام لگا کر تحقیقات اور فوری مرمت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں منور سندھی کی رپورٹ میں۔ ٹنڈوالہ یار میں کروڑوں روپے سے تعمیر ہونے والی مین حیدرآباد سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کا تعمیراتی کام میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ٹنڈوالہ یار شہر سے کریا شاخ جانے والی مین حیدرآباد سڑک جو چند سال قبل کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی تھی، اب مختلف مقامات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر میں مبینہ طور پر ناقص مٹیریل اور کے استعمال اور کرپشن کے باعث یہ سڑک مقررہ مدت سے پہلے ہی خستہ حال ہو گئی ہے۔ مقامی افراد کے مطابق سڑک پر گہرے گڑھے بن چکے ہیں، جبکہ دونوں اطراف کے نالوں کی بروقت صفائی نہ ہونے کے باعث گندا پانی سڑک پر جمع رہتا ہے، جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ بارش کی موسم میں صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر حادثات پیش آنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی فوری مرمت کرائی جائے، نالوں کی صفائی یقینی بنائی جائے اور تعمیراتی منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیوں اور فنڈز کے استعمال کی شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا مستقل حل نکالا جا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ منور سندھی، ایم نیوز، ضلع ٹنڈوالہ یار۔ ادھر بورے والا کے ڈی بلاک میں ادھورا تعمیراتی منصوبہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ بارش و سیوریج کے پانی نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں حافظ خلیل احمد کی رپورٹ میں۔ ضلع وہاڑی کی تحصیل بورے والا کے معروف علاقہ ڈی بلاک میں تعمیر نو کے لیے اکھاڑی کی سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان بن چکی ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق 3 ہفتے قبل سڑک کو تعمیر کے لیے اکھاڑا گیا، مگر ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ حالیہ بارشوں کے باعث نالیوں سے سیوریج کا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو رہا ہے، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندا پانی پینے کے پانی میں بھی شامل ہونے لگا ہے، جس سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
अहले इलाका का कहना है कि कई गलियों में न बजरी डाली गई और ना ही तमीराती काम आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके बायस आमदोरफ्त शदीद मुतासर है। मस्जिद जाने वाले नमाजी, तलबा, बुजुर्ग, शहरी रोज़ाना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि मुसलसल पानी खड़ा रहने से करीबी घरों और इमारतों की बुनियादें भी मुतासर होने का खदशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो इस वक्त गैदरिंग हमारी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी रोड के हवाले से है। जो मसले मसाइल हैं, आजकल वैसे भी बारिशों के दिन हैं, ये जितने 2-4 मर्सिबल लगे हुए थे वो बिल्कुल डाउन हो गए हैं, पंप ख़राब हो गए हैं और बारिशों का और नालियों का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग का नुकसान हो रहा है और घरों का पानी जो है वो नालियों को पानी से मिक्स अप हो रहा है। सीवरेज सिस्टम ख़राब हो रहा है, गुज़रने की जगह है, यहाँ साथ ही मस्जिद है, बच्चे पढ़ने आ जा रहे हैं और जो नमाजी हैं उनके लिए भी मुश्किलात पेश आ रही है। और जो ठेकेदार है वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। 3 हफ्ते हो गए हैं, रोड को उखाड़ के चले गए हैं, ना पानी फेंक रहे हैं और ना बज्जर फेंक रहे हैं। गुज़रने का जो मसला है वो बड़ा मसाइल है, गुज़रना बहुत मुश्किल है, महाल है। तो हमारी इंतज़ामिया से और मुतलका हुकाम से और गवर्नमेंट पंजाब से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अज जल्द रोड को मुकम्मल करें। शुक्रिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला से मुतालबा किया है कि मामले का फौरी नोटिस लेकर अधूरा मंसूबा मुकम्मल कराया जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज़ खलील अहमद, एम न्यूज़, बुरेवाला। मसाइल और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे टंडो भागो में बरतानवी दौर का तारीखी डिप्टी बंगला अदम तवज्जुही के बायस खस्ता हाली का शिकार है। शहरी इस तारीखी विरसे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। जानते हैं जुमन शाह की रिपोर्ट में। ये फकत ईंटों और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि 1.5 सदी से ज़्यादा पुरानी तारीख की खामोश गवाह है। टंडो बागों में वाक़ई ये तारीखी डिप्टी बंगला, जिसे मकामी लोग आज भूत बंगला के नाम से जानते हैं, बरतानवी राज के दौर में तकरीबन 1878 के ज़माने में सरकारी इंतज़ामी निज़ाम का एक अहम हिस्सा था। इस इमारत को इस मकसद के लिए तमीर किया गया था कि जब ज़िला हैदराबाद के डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर या दीगर आला बरतानवी अफसरान टंडो बागों का दौरा करें तो उनके क़याम और सरकारी इजलासों के लिए एक मुनासिब जगह मुयस्सर हो। इस दौर में टंडो बागो एक अहम तलका हेड क्वार्टर था, इसलिए यह बंगला इंतज़ामी सरगर्मियों का मरकज़ समझा जाता था। इस इमारत की मजबूत ईंटें, ऊंची छतें, कुशादा बरामदे और हवादार कमरे आज भी बरतानवी तर्ज तमीर की झलक पेश करते हैं। एक वक्त था जब यहाँ सरकारी फ़ैसले होते थे और इलाके के अहम इंतज़ामी अमूर यहीं से अंजाम दिए जाते थे। ये जो इमारत है जिस पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बंगलो, और इनका सन जो है बनने का वो है 1878। 1878 से पहले टंडो बागो तहसील हुआ था और उन ज़माने में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पे, तब ये इमारत तमीर की गई थी। इस इमारत की जो डिज़ाइन है वो भी मुनफरद किस्म की डिज़ाइन है। इसके अंदर रोशनी और हवा के लिए रोशनदान और हवादान रखे गए थे। उस टाइम पे बिजली नहीं थी और सर्दी के मौसम में इसके अंदर जो गेस्ट हाउस है, जिसे हम गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं, उसके अंदर एक चिमनी बनी हुई थी जहाँ लकड़ियाँ और कोयले वगैरह जला के उसको गर्म रखा जाता था और उसका जो धुआं था वो छत से आगे निकलता था। तो इस इमारत की जो डिज़ाइन है इंतहाई मुनफरद है। बताते थे ये इमारत अब भी मौजूद है यहाँ टंडो बागो में। ये कदीमी और तारीखी इमारत है। इसका अब जो हाल हुआ है वो आपने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये उजड़ गई है बिल्डिंग, जो एक तारीखी बिल्डिंग थी। होना तो ये चाहिए कि कल्चर डिपार्टमेंट को इस इमारत को कौमी वर्सा, नेशनल हेरिटेज में लेना चाहिए और इसकी उसी तर्ज की दोबारा तमीरात करानी चाहिए जैसे ये तारीखी विरसा महफूज रहे। ये जो टंडे बागे में जो बंगला है ये असल में डिप्टी के नाम से इसको कहा जाता है। ये एक्सपेंशन बंगला है। जब अंग्रेज़ों के दौर था
तो यहाँ के जो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर वो यहाँ पर मंजर अंदाज होते थे और मुख्तलिफ जो सरकारी जो डिपार्टमेंट थे उस टाइम में उसकी वो इंस्पेक्शन करते थे। मिसाल के तौर पर इरिगेशन की इंस्पेक्शन और रेवेन्यू की और सेहत की, पोस्ट ऑफिस और जो भी इदारे थे उसकी इंस्पेक्शन करते थे। और जब पाकिस्तान बना तो फिर यहाँ के जो है कमिश्नर यहाँ पे मंजर अंदाज होते थे इस बंगलों में, खसूसन उनका इंतज़ाम जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले करते थे। अब इसके अलावा ये जो बंगला है टंडे बागों का डिप्टी वाला बंगला उसको कहा जाता है, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ अशखास का आना था, जिसमें प्रिंस करीम के बड़े भी यहाँ पे आए थे, प्रिंस करीम आगा खान के बड़े इस बंगले पर मंजर अंदाज हुए थे। और उसके अलावा मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मिस्टर सदर अयूब भी यहाँ पे आए थे और उसके अलावा बहुत सारे अशखास का यहाँ पे आना हुआ था। तो इमारतें बनती हैं, वो इमारतों की जो है वो मरम्मत न होने की वजह से वो इमारतें ज़बून हो जाती हैं। और वैसे देखा जाए तो इमारत साजी का जो फ़न है उसमें दौरों के हिसाब से तब्दीलियाँ आती हैं। उसी वजह से अगर इन जो इमारतें हैं ये, जैसे ये टंडो बागों में डिप्टी का बंगला, तो उसकी मरम्मत की जाए तो उससे होता ये है कि उन दौरों की जो इमारत साजी का फ़न था उसको वो फ़न ज़िंदा हो जाता है। और अगर ये फ़न ज़िंदा हो जाता है तो उस दौर की जो तारीख़ है वो भी ज़िंदा हो जाती है। वक्त के साथ हुकूमतें बदलती रही मगर ये तारीखी बंगला तन्हाई का शिकार होता चला गया। देखभाल न होने के बाइस आज इसकी दीवारें खस्ता हाल हैं, छतें टूट फूट का शिकार हैं और खामोशी इस इमारत का मुकद्दर बन चुकी है। मकामी लोग इसे भूत बंगला ज़रूर कहते हैं मगर हकीकत में यह खौफ नहीं बल्कि हमारी तारीख की एक ज़िंदा निशानी है। अगर इस तारीखी विरसे की बरवक्त मरम्मत और हिफाजत न की गई तो आज आने वाली नस्लें इस अहम यादगार को शायद सिर्फ तस्वीर और किताबों में ही देख सकेंगी। ये बंगला फ़कत एक इमारत नहीं बल्कि टंडो बागों की तारीखी शनाख्त और सकाफ़ती विरसा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, मटियारी में सिंध के अजीम शायर शेख अयाज की आखिरी आरामगाह अदम तवज्जही के बायस खस्ता हाली का शिकार है। मज़ार की बोसीदा हालत ने सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हालार गुल मेमन की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सिंध का ज़िला मटियारी की तहसील हाला के तारीखी शहर बिटशा में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की सरज़मीन एक बार फिर सकाफ़ती वर्सा के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सवालात की ज़िद में आ गई है। शाह लतीफ़ की मज़ार के बाद अब सिंध के अजीम इनकलाबी शायर शेख अयाज की आखिरी आरामगाह भी मुनासिब देखभाल न होने के बायस खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है। कराड़ झील के किनारे कायम शेख अयाज की आखिरी आरामगाह, जहाँ रोज़ाना अदीब, शायर, तालिब इल्म और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों से आने वाले लोग हाज़िरी देते हैं, आज मुनासिब मरम्मत और देखभाल की मुंतज़िर दिखाई देती है। मकामी शहरियों और अदबी हलकों का कहना है कि मज़ार की दीवारों में दरारें पड़ चुकी है, खूबसूरत टाइलें उखड़ रही है, जबकि अहाते में कायम पार्क भी टूट फूट का शिकार है। सरसब बागात खुश्क हो रहे हैं, सीमेंट की बेंचें टूट चुकी है और कई मकामात पर सफाई की सूरत हाल भी तसल्ली बख्श नहीं। शहरियों के मुताबिक ये मकाम सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि सिंध के अदबी, तारीखी और सकाफती शनाख्त की अलामत है, जिसे महफूज रखना मुतल्लिका इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अदबी शख्सियात का कहना है कि शेख अयाज ने अपनी शायरी के ज़रिए सिंध की ज़ुबान, सकाफ़त और शनाख्त को आलमी सतह पर मुतारफ़ कराया, इसलिए उनकी आखिरी आरामगाह को कौमी वर्सा के शायाना शान बनाया जाए। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर बरवक्त मरम्मत और बहाली का काम न किया गया तो वक्त गुजरने के बाद तारीखी मकाम मज़ीद नुकसान का शिकार हो सकती है।
उनका मुतालबा है कि महकमा सकाफत इस मुकाम का तफसीली जायज़ा ले, मरम्मत, सफाई, बागबानी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि यहाँ आने वाले ज़ायरीन और अदब से मोहब्बत करने वाले अफराद को बेहतर माहौल मैसर आ सके। शहरियों और अदबी हलकों ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, रुकन कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मा और रुकन सूबाई असम्बली सिंध मखदूम महबूब जमा और वज़ीर आला सिंध और महकमा सकाफत के मुतल्लिक़ हुकाम से मुतालबा किया है कि पिटशाह में मौजूद शेख अयाज की आखिरी आरामगाह और दीगर सकाफती वर्षे की हालत का फौरी नोटिस लिया जाए। अगर देखभाल में कोई कोताही हुई तो उसका जायज़ा लिया जाए और तारीख़ी मकामात की बहाली, मरम्मत और मुस्तकिल देखभाल के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाए ताकि सिंध का ये कीमती सकाफती वर्षा आइंदा नस्लों के लिए महफूज रह सके। कैमरा टीम के साथ हालार गुल मेमन, एम न्यूज़, पिटशाह। उधर कमालिया से झंग जाने वाली सिंगर रोड पर बढ़ते हादसात शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन गए हैं। मुतासरीन ने रोड को फौरी तौर पर डबल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं नदीमुल्लाह चौधरी की रिपोर्ट में। कमालिया से रजाना टोबा टेकसेंग होते हुए जंग जाने वाला मरकजी सिंगर रोड आए रोज़ ट्रैफिक हादसात का सबब बनता। मुकामी शहरियों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इस अहम शाहरा पर ट्रैफिक का दबाव गुज़श्ता कई बरसों में कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि ये मोटरवेज M3 और M4 से आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए भी एक अहम राब्ता सड़क बन चुका है। माजी में भी इस सड़क पर बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव और हादसात के हवाले से अवामी आवाज़ें उठती रही हैं। शहरियों के मुताबिक सिंगर रोड होने की वजह से ओवरटेकिंग के दौरान सामने से आने वाली गाड़ियों से तसादम का खतरा बढ़ जाता है, जबकि भारी ट्रैफिक, ट्रैक्टर, ट्रालियां से और माल बरदार गाड़ियां भी इसी सड़क से गुजर रही हैं। इसी सूरत हाल के बायस मामूली गलती भी जानलेवा हादसे में तब्दील हो जाती है। मुख्तलिफ औकात में इस रोड पर मुतअद्दिद अफसोसनाक हादसात पेश आ चुके हैं, जिनमें कीमती इंसानी जानें ज़ाया और कई अफराद जख्मी हुए। अवाम का कहना है कि कमालिया, रजाना टोबा टेकसेंग और झंग के दरमियान रोज़ाना हज़ारों शहरी, तुलबा, मुलाजमीन और कारोबारी अफराद सफ़र करते हैं, मगर सिंगर रोड होने की वजह से सफ़र न सिर्फ सुस्त बल्कि गैर महफूज भी हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, महकमा मवासलात और तामीरात NHA और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि कमालिया ता झंग रोड को फौरी तौर पर दो रोया बनाया जाए। ख़तरनाक मकामात पर हिफाजती इक़दामात, मुनासिब साइन बोर्ड और स्पीड कंट्रोल के इंतजाम किए जाएँ ताकि कीमती इंसानी जानों का मज़ीद नुकसान रोका जाए। आवाम का कहना है कि अगर इस अहम शाहरा को बर वक़्त और अपग्रेड ना किया गया तो बढ़ती हुई ट्रैफिक के साथ हादसात में मज़ीद इजाफा होने का खदशा है। और अब बात करें डेरा गाजी खान की सदीक आबाद कॉलोनी में शहरी रोज़ाना जान खतरे में डालकर रेलवे लाइन अबूर करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन महफूज गुज़रगाह की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अमीन खान की रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान सदीकाबाद कॉलोनी में रेलवे फाटक की अदम मौजूदगी शहरियों के लिए एक संगीन मसला बन चुका है। मकामी अफराद के मुताबिक तकरीबन 20,000 की आबादी रोजाना इसी रास्ते से गुजरती है, जहां ना कोई फाटक और ना ही हिफाजी इंतजामात मौजूद है। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और तुलबा रोजाना रेलवे लाइन अबूर करते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त हादसे का खदशा रहता है। उनके मुताबिक मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हकाम को दरख्वास्तें दी गई, मगर अब तक कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रेलवे फाटक तामीर किया जाए, महफूज रास्ता फराहम किया जाए ताकि किसी भी मुमकिना हादसे से बचा जा सके। उनका कहना है कि अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो वो एहतजाज का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमीन, एम न्यूज़, डेरा गाजी खान। उधर शाहकोट की सरकारी फीड मिल बरसों से बंद पड़ी है। करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी जंग आलूद हो रही है, जबकि इमारत भी तबाही का शिकार है। मजीद जानते हैं लियाकत अली भट्टी की रिपोर्ट में। शाहकोट की वो सरकारी फीड मिल जहाँ कभी मशीनों की आवाज़ गूंजती थी और सैकड़ों अफराद को रोज़गार हासिल था, लेकिन आज यहाँ खामोशी का राज है। वक्त के साथ साथ कीमती मशीनरी जंग आलूद हो रही हैं, जबकि इमारत भी तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है। इस हवाले से मुकामी अफराद का कहना है कि ये फैक्ट्री ना सिर्फ रोज़गार का जरिया थी बल्कि इलाके की माइशत भी हम किरदार अदा करती थी। अच्छा प्रोजेक्ट था। आज से 35-40 साल यानी 3 दहाइयाँ पहले इसको शुरू किया गया था और उस वक्त इस पे करोड़ों रुपए लागत आई थी। हुकूमत अगर चाहती, इसे तवज्जो दी जाती, लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट
अगर इसे ऑन करता तो अब तक इससे लाखों लोग फायदा उठा सकते थे। ये शाहकोट में और इस हमारे एरिया में बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट था, गरीब आवाम को इससे सस्ता आटा मुहैया करना था, जो कि नहीं हो सका। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है ये, इसको बहाल करना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिससे गरीब और मजदूर तबका जो लोग हैं उनको सस्ता आटा भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर फौरी तवज्जो दी जाए तो इस मल को दोबारा फाल किया जा सकता है। इसे कल डेवलपमेंट सेंटर में तब्दील किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ जगह महफूज हो सकती है बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। अब देखना यह है कि मुतलका एहकाम इस कीमती असासे को बचाने के लिए इक़दाम करती हैं या ये मल माजी का हिस्सा बनकर रह जाएगा। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली भट्टी, एम न्यूज़, शाहकोट। मजीद मसाइल लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करें ओकाड़ा की। डॉक्टर कॉलोनी में सीवरेज और निकासी आब का निज़ाम शदीद मुतासिर है, जिसके बायस गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है और शहरियों को सेहत समेत कई मसाइल का सामना है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट में। ओकाड़ा की डॉक्टर कॉलोनी कई बरसों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। नाकस सीवरेज निज़ाम के बाइस गंदा पानी गलियों से होता हुआ घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। जी, मैं ओकाड़ा मेडिकल कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। ये दर्जा चहारम की कॉलोनी है और इसको अरसा 50 साल बने हुए हैं, मगर हम वासा के हवाले से बात कर रहे हैं कि जिसको गवर्नमेंट ने 250 अरब रुपए दिए हैं ताकि आपने ओकाड़ा में जो सीवरेज का मसला, यानी कि पूरे पाकिस्तान में जो सीवरेज का मसला है उसको हल करना है, मगर बदकिस्मती के वासा वाले यहाँ आते ही नहीं है। हमारे गलियाँ और उसके अलावा जो प्लाट हैं वो पानी से भरे हुए हैं। यहाँ बच्चे जो है नालियों में गिर रहे हैं। हमने वासा को कंप्लेन भी किया, मगर वो कहते हैं कि हमने नहीं यहाँ आना। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से इल्तमास है कि और इंतज़ामिया से इल्तमास है कि वासा की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए और यहाँ जो मेडिकल में सीवरेज का मसला है उसको हल किया जाए। शुक्रिया। शहरियों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से बच्चों और बुजुर्गों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, जबकि ताफुन के बाइस सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। अहले इलाका मुतअद्दिद बार मुतलका अदारों को शिकायत कर चुके हैं, मगर ताहाल मसला जूं का तूं है। सिर्फ सीवरेज ही नहीं बल्कि कॉलोनी में मौजूद बास खस्ताहाल इमारतें भी खतरे की अलामत बनी हुई हैं। मकामी अफराद के मुताबिक ये इमारतें किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती हैं, जिससे जानी नुकसान का खदशा बढ़ गया है। तकरीबन 30-40 साल हो गए रहंदे हैं ते बिल्डिंग जी बहुत खस्ता हो चुकी है। वेख लो तुम अपने अखा ना वेख लो कि सरिये बाहर निकले हुए ने, हालात डिगे ने, सिरां दे च डिगण डे ने, ते साडे सीवरेज वेख लो किवें अंदरां च पानी भरिया होया। ते साडी रिक्वेस्ट ये है कि साडे इन्हां दे उत्ते दोबारा जिहड़ी ना या ते इन्हां ने रीटे कीती जाए, साडे जिहड़े ने ना सारे सीवरेज ये भी मिलने चाहिए। ये मसला कि किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता, कोई बच्चा डिगा, अगले दिन बच्चा छोटा उत्तर डिगा वा और लत्त बांह बच गई, लेकिन शुक्र है को बच गया, लेकिन इस किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। बराए मेहरबानी करके साडे ते रहम किया जाए। इलाका मकीनों ने ज़िले इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर मुतलका अदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, गलियों से गंदा पानी निकाला जाए और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे करके हफाजती इक़दाम किए जाएँ ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन मियां काशिफ के साथ मोहम्मद रमज़ान, एम न्यूज़, ओकाड़ा। खबर दें चीचा वतनी के नवाही गांव 814L में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़ा है। शहरी साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलतें महरूम हैं। जानते हैं हमजा रियाज की रिपोर्ट में। चीचावतनी के नवाही गांव 814L में पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद, जिसकी वजह से अहले इलाका मकीनों को दुश्वारी का सामना है। फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल न होने की वजह से प्लांट्स की बंदिश के बाइस अहले इलाका को साफ पानी के हसूल में शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि हम दूर दूर से साफ पानी भर कर घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी साडे पिंड दे विच फिल्टर प्लांट लगा हुआ है जी, ਇਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਗਾੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 814L ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਗੱਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इलाका मकीनों का कहना है हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट बुरी तरह खराब हो चुका है, हम दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। हमारी कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से अपील है कि इस पर नोटिस लेकर इसको चालू करवाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ हमजा रियाज, एम न्यूज़, चीचावतनी।
कायदाबाद की बात करें। कायदाबाद रेलवे स्टेशन के इलाके में कई रोज से पीने के साफ पानी की फराहमी मुअत्तल है। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं फिदा मोहम्मद की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन कायदाबाद पे मौजूद हूँ, जहाँ के मकीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। अरसा 5 साल से यहाँ के दोराहा रोड बनने की वजह से यहाँ की वाटर सप्लाई लाइन उखाड़ दी गई थी, जिसको फिर बाद में बहाल ना किया जा सका। फंड मंजूर हो गए, लेकिन फंड मंजूर होने के बावजूद यहाँ का ठेकेदार जो था वो यहाँ से भाग चुका है। इस हवाले से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। आइए जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी मैं रेलवे स्टेशन कायदाबाद रहायशियाँ थे। सारी हुकूमत तो गुजारे कि सारा 4-5 साल से वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है। इन्होंने यहाँ पर पैप पहुँचाए भी थे, मगर फिर उठा लिए हैं। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें वाटर सप्लाई का पानी दिया जाए। हमारे लोग बहुत मुश्किलात में हैं। हमें ख़रीदना पड़ता है पानी यहाँ से, जो कि हमें 50 रुपए में थोड़ा सा पानी मिलता है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमें वाटर सप्लाई का पानी दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम भैया, नाम रेलवे स्टेशन कायदाबाद से बोल रहे हैं। पानी का सर बहुत ज़्यादा मसाइल है। पीने का पानी का साफ़ पानी नहीं है, यहाँ बहुत मसाइल है। जो है भी सही बहुत कड़वा है, पीने के काबिल नहीं है। लाज़ा मेहरबानी करके पानी को, वाटर सप्लाई वाले पानी को दोबारा बहाल किया जाए। शुक्रिया। पानी तो असां एॾे औखे हाँ जेड़ा कोई आखे। पानी असां अज़ाबां ते चार छोड़े। असां हिक हथ बोतल होनी है, हिक छोटी होनी है। रेलवे स्टेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा मोहल्ला रेलवे स्टेशन कायदाबाद है और हमारे तकरीबन 90% लोगों के घरों में पानी है वो नमकीन आता है। हमें मीठे पानी की अशद ज़रूरत है और यहाँ पे जो टैंकर माफिया है वो हमें 50-50 रुपए की कैनी भर के देता है और हम घंटों इंतज़ार करते रहते हैं। और जनाब ये वाटर सप्लाई का पानी हमारे यहाँ मेन रोड तक आया हुआ है रेलवे स्टेशन के और ये मेन रोड बनने की वजह से वो पाइप डिस्टर्ब हुआ है, तबाह हुआ है। उसके बाद ठेकेदार भी भाग गया और मीठे पानी ना होने की वजह से हम टैंकर माफिया के गुलाम बन के रह गए। जनाब मेहरबानी करके एसी साहब, डीसी साहब खुशाब और वज़ीर आला पंजाब इस बात पे नोटिस लें कि हम लोग महल्ले में तकरीबन 90% गरीब लोग ही बसते हैं। मेहरबानी करके इन गरीब लोगों की सुन लें और हमें मीठा पानी, जो वाटर सप्लाई वाला पानी, वो मुहैया किया जाए ताकि हमारे महल्ले वाले भी आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सके। 5 साल तो वाटर सप्लाई का मसला चल रहा है। साढ़े को लगे वाटर सप्लाई है वो जो रोड का काम शुरू होया तो खत्म हो गई आई। वो अपना ठेकेदार साहब काम ही शुरू किया। डीसी साहब को 2-3 दफा गया, एसी साहब को गया, वो वाटर सप्लाई सारी नहीं चलती पे। सारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब ने भी मेहरबानी करो तो इदा फंड भी रिलीज हो चुका। ठेकेदार पैसे की वदा ते अद्धा काम ही की वदा, वो काम कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा। मेहरबानी करे वो ठेकेदार नू आख्या वने, उसनू फोर्स किया वने कि उस काम नू मुकम्मल किया वने ते साडी दाद रसी की वने। असां बहुत परेशान हाँ क्योंकि सारे को पानी बहुत कौड़ा ते नमकीन है, जिसकी वजह तो बड़े मसाइल हैं। इंसान शहरियों को यही कहना था कि वाटर सप्लाई का पानी न होने की वजह से हम टैंकर माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पे मजबूर है। लिहाजा हमारा जल्द अज जल्द पानी के मसले को हल किया जाए। जब इस हवाले से मुतलका महकमे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक फंड रिलीज नहीं हुए, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। हमने ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया है। जल्द ही इस मामले पे इंशाल्लाह ताला मज़रामत हो जाएगा और शहरियों की मुश्किलात में आसानी पैदा की जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ फिदा मोहम्मद जानी, एम न्यूज़ कायदाबाद। और अब गुजर खान की बात करें। गुजर खान की साफ पानी की फराहमी शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गई है। मुतअद्दिद ट्यूबवेल बंद होने से पानी की किल्लत बढ़ रही है। जानते हैं मोहम्मद आसिम की इस रिपोर्ट में। गुजर खान में पीने के साफ पानी की फराहमी एक संगीन मसला बनती जा रही है। शहरियों का कहना है कि वाटर सप्लाई शेड्यूल के मुताबिक न मिलने से रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है, जबकि मुतअद्दिद सरकारी ट्यूबवेल बंद या ख़राब होने के बायस सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। गुजर खान शहर में वाटर सप्लाई का निज़ाम शहरियों की ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। शहरियों के मुताबिक इन शेड्यूल के मुताबिक पीने का पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जिसके बायस वो बुनियादी सहूलत से महरूम है। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुतअद्दिद सरकारी ट्यूबवेल या तो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं या फ़नी ख़राबी के बायस गैर फ़ाल हैं। पानी जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है और तहसील गुजर खान जो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, उसमें पानी की अशद जो है वो ज़रूरत है। पानी की इतनी किल्लत है कि हफ्तों तक जो है वो पानी की सप्लाई बंद रहती है। नलकों में पानी नहीं है, लेकिन बिजली के बिलों में जो है वो पानी का पूरा बिल डाला जाता है। तो मेरी इंतज़ामिया से भी ये दरख्वास्त है और अरबाब इक़्तिदार से भी ये गुजारिश है
کہ اس دیرینہ مسئلے کی طرف دھیان دیں اور لوگوں کو جو پانی سے ترسایا ہوا ہے لوگوں کو انتظامیہ نے اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے مزید ٹیوب ویل کا بھی اہتمام کیا جائے اور لوگوں کے گھروں تک یہ بنیادی ضرورت پہنچائی جائے. مریم نواز تک بھی ہم نے آگے شکایت پہنچائی. وارڈ نمبر 6 ملا کریشیاں میں پانی نہیں آتا اور جناب بہت بے چینی ہے. ادھر غریب عوام مر چکی ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. یہ جناب مریم نواز ہمیں تو بہت اچھے, ہم نے شیر کا 1985 سے ہمارے والد صاحب نے ہم سب نے ساتھ دیا, لیکن اتنی زیادتی بھی نہ کرو کہ اندھا لوگ نام لیوا بھی آپ کے نہ رہیں. بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گجر خان میں نئے ٹیوب ویل نصب کیے جائیں اور اضافی واٹر ٹینک تعمیر کیے جائیں تاکہ ہر علاقے میں پینے کا صاف پانی بلا تعطل اور بلا ناغہ فراہم کیا جا سکے. ہم گجر خان وارڈ نمبر 7 کے رہائشی ہیں. ہمیں بہت پرابلم ہے پانی کی, کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا, کبھی ان کا جو شیڈول ہے وہ نہیں ٹھیک. محلے میں بہت پرابلم پڑی رہتی ہے. ایک گلی کا وہ پانی کھولتے ہیں دوسری کا بند کر دیتے ہیں. اس لیے آپ مہربانی کر کے محلے کا توجہ دیں, ادھر پانی کے مسائل حل کریں. محلے میں کافی پرابلم ہے لوگوں کی, اور کبھی وہ کھولتے ہیں کبھی کسی کا کھول دیتے ہیں کبھی کسی کا. پانی کا بہت مسئلہ ہے. ہم پیسے دے کے نا 400-500 روپے دے کے پانی بھراتے ہیں. جب بھی ہم ان سے کہتے ہیں تو بل آ جاتا ہے پانی کے دینے کے لیے آ جاتے ہیں, تو ہم کافی پریشان ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی پانی کے لگا دیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پانی کی طلب میں اضافہ ہو چکا ہے, مگر موجودہ واٹر سپلائی نظام اس ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہا. متاثرہ علاقوں کے مکینوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خراب ٹیوب ویل فوری طور پر مرمت کیے جائیں, بند ٹیوب ویل دوبارہ فعال کیے جائیں اور مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے ٹیوب ویل اور واٹر اسٹوریج ٹینک تعمیر کیے جائیں تاکہ گجر خان کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی مستقل بنیادوں پر یقینی بنائی جا سکے. تعلق تحصیل گجر خان سے ہے جی, جہاں پر پانی کا مسئلہ کافی شدت اختیار کر چکا ہے اس وقت, اور گھروں میں پانی بالکل بھی نہیں آ رہا. ایک ہفتہ پانی بالکل بھی نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. تو میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کا جلد سے جلد حل کیا جائے. شہریوں نے حکومت پنجاب اور متعلقہ محکموں سے اپیل کی ہے کہ پانی جیسے بنیادی مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرتے ہوئے گجر خان میں واٹر سپلائی نظام کو جدید اور مؤثر بنایا جائے تاکہ عوام کو اس بنیادی حق سے محروم نہ رہنا پڑے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پینے کا پانی جو ہے انہیں بہت دشواری سے مل رہا ہے. گجر خان میں پینے کے پانی کے حوالے سے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پینے کے پانی کے حوالے سے کوئی شیڈول نظر نہیں آ رہا ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے یہ اپیل کی ہے کہ پانی پینے کا جو پانی ہے اس کی فراہمی کو تسلسل سے جاری کیا جائے اور ان کا جو شیڈول ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاصم, ایم نیوز, گجر خان. گندیا شہر میں ناکارہ سیوریج نظام نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. گندا پانی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. مزید جانتے ہیں امیر اکبر کلیار کی رپورٹ میں. ضلع میاں والی کا دوسرا بڑا شہر کندیاں بنیادی شہری سہولیات کے فقدان کی ایک افسوسناک مثال بن چکا ہے. خصوصاً شہر کا سیوریج سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے. شہر کے وسط میں موجود گندے پانی کا ایک بڑا تالاب جس میں مختلف محلوں کا پانی جمع ہوتا ہے, نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے موذی امراض ڈینگی, ملیریا و دیگر بیماریوں کی آماجگاہ بن گیا ہے. میونسپل کمیٹی کندیاں, جس کی اولین ذمہ داری صفائی و نکاسی آب ہے, اس سنگین صورتحال کے باوجود مؤثر اقدامات کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. ہمارے اس محلے کی سیویج کا جو پانی ہے وہ یہاں پہ آ کے اکٹھا ہو چکا ہے, یہاں پہ جوہر بن چکے ہیں. ایم سی کا دفتر یہاں پہ نزدیک ہے لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی نظام نہیں بن رہا, تو لہٰذا ہماری التجا ہے کہ وہ فنڈز کہاں گئے جو اس جوہر کے لیے دیے گئے تھے, وہ سارے فنڈز کہاں گئے, یہ تالاب ابھی تک یہاں پہ کیوں ہے. ہماری التجا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. دوسری جانب اس گمبھیر صورتحال میں سیاسی نمائندوں کی خاموشی بھی لمحہ فکریہ ہے. انتخابات کے دوران عوام سے ترقی, خوشحالی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے وعدے کرنے والے عوامی مسائل سے مسلسل بے خبر ہیں. عوام سیاسی نمائندوں کی طرف سے لاپرواہی پر مایوسی کا شکار ہیں. اور یہ ہمارے بالکل سامنے بہت بڑا تالاب ہے, یہ کم از کم 2-3 سال سے ہے. گندا پانی ہے, پورے محلے کا گندا, بلکہ 4-5 محلوں کا پانی یہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے. سامنے بالکل ساتھ ہی ریلوے اسپتال ہے, ٹاؤن کمیٹی کا دفتر ہے,
लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है कि ये महल्ले वाले किस तरह ज़िंदगी जानवरों से बदतर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे घरों में जो पानी है वो गंदा हो चुका है, लोगों के घर में दरारें पड़ चुकी हैं। हमारी बीवी बच्चे जो भी फैमिली हैं या दूसरी फैमिली के जो लोग गुजरते हैं, औरतें इतनी बुरी हालत से गुजरती हैं। साथ ही कॉलेज है, इनकी बुरी इतनी पोजीशन है कि किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। साहब का DCO साहब भी यहाँ विज़िट कर चुके हैं। AC साहब तो लामहदूद विज़िट किए हैं, शुमार भी नहीं है, लेकिन अमलन ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सियासी सोए हुए हैं, चाहे PTI वाली हैं, हमारा MNA MP PTI वाला है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारा जोया साहब, हमारे या सत्तैन खान मुसलसल यहाँ से MPA बने हैं, जो यह मुसलसल काम आगे पीछे कर रहा है। यहाँ पे एक चक्कर भी आज तक नहीं लगाया कि ये ज़िंदगी कैसे गुजारें। जब इलेक्शन आएगा सारे जनाब सुबह शाम फैते भी आ जाएंगे, दरूद भी आ जाएंगे, जी हजूरी भी शामिल हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। कुनिया के अक्सर इलाके में, ख़ास कर इस मोहल्ले में इंतहाई कितने जनाजे हमने पानी से गुजारे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का कहना है कि अवाम पर पे दर पे टैक्सेस के नफाज के बावजूद आम शहरी मसाइल के अंबार में दबता चला जा रहा है, लेकिन हुक्मरान ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। मीडिया वाले बेचारे आनंद सारियां हाजिरी तकरीर कर सकते हैं, करें दसे 2 मौतें सारियां हो गई हैं। इस तो इलावा अद्धा साडा महल्ला बीमार हो चुका है। बीमारियां तो इतने मुबतला है कि रोज़ अस 10,000 20,000 अपने मरीज़ से लेने। टाउन कमेटी को इतना फंड आना, उन्होंने कोई तवज्जो ही साढ़े दी को नहीं। साड़ी इल्तमास है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के खुदारा साढ़े दे तवज्जो देवे तो साड़ी इससे बीमारी तो निजात उठा फैलती पई बीमारी साड़ी निजात हो वने। शहरियों ने DC मियांवाली और वज़ीर आला पंजाब से कुंदियाँ के नाकारा सीवरेज सिस्टम की मुस्तकिल बुनियादों पर बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ अमीर अकबर कलियार, M न्यूज़ मियांवाली। इसके साथ ही आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।